تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو, ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے, ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے, اچھا شخص تھا, اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے, انہیں نعمت دے, انہیں معاف کرے, وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو, یہ بالکل حرام ہے. شفا, قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش, وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو, سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے, لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے, ان کی عبادت نہیں. عبادت صرف اللہ کی ہے. ہمیں میڈیا کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم جھگڑا کرے, میں جھگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں. میرے خلاف چند ہارڈلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے, اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمان ہی. آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے نا, آپ گوگل کرو ذاکر نائک انورٹڈ کامرس میں, 62 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہے. 62. کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں 62 لاکھ ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں. نمبر 2 پہ آتے دیدا, جس سے میں متاثر ہوا, اس کے ہے 14 لاکھ. میرے 62 لاکھ ہے. کتنے؟ 62 لاکھ. اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ 10 میں تو ایک ویب سائٹ ملیں گی ذاکر کے خلاف. اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریہ پیش کرتا ہوں, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تو کیا ہو رہا ہے, بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے. تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف, ذاکر کافر, ذاکر کافر, ذاکر یہ ایک ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجرات میں کہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے, گھوم رہا ہے. ارے جو شخص ہزاروں لوگ کو شہادت دیتا ہے, تقریر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیگر مذاہب میں, وہ شخص کبھی بول سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہے. میڈیا جب مجھے دکھایا گیا, میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے, لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. آگے پیچھے دیکھو کیا ہے, پوری پیشن گوئی ہے, مانگنا حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. ابھی ہو سکتا ہے 2 چیز, کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پیش ٹی وی نے نہیں کی تھی. 2 چیز ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے, سبقت لسان, زبان پھسلنا, یا ہو سکتا ہے کہ اس نے مینیپولیٹ کیا ہے. اور مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے, لیکن اکثر مسلمان, ہاں ذاکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہے. کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا یہ مان ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کی دکان بند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں, لیکن ہوا کی طرح حفاظت, فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے, میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا. میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے, کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے, تاکہ مجھے اجر ملے. اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایک جگہ ملے. اس کے لیے مجھے یہ فکر نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, یوٹیوب پہ آپ کو دکھے گا ذاکر مسجد میں جوتے چوری کر رہا ہے. ذاکر نائک مسجد میں جوتے چوری کر رہا ہے. ابھی جو بھی ذاکر کو جانتا ہے اس نے زندگی چھوڑ دی کہ جوتے چوری کرے گا, لیکن جو لوگ خلاف ہے, ہاں ذاکر چور ہے, جوتا چور ہے, ہاں ٹھیک ہے بھائی, میں جواب بھی نہیں دیتا ہوں. آپ سمجھے نا, کیونکہ کہاوت ہے اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ تک پہنچے ہی نہیں. تو میرا انوبھو ہو گیا ہے. رادھنپور میں ہم آج صبح ہی بات کر رہے تھے تو کوئی مسلمان بھائی ایسا بول رہا تھا وہ ہمارا سمپردائے سے الگ ہے, ذاکر بھائی الگ ہے. الگ ہے.
फिर चलो समी चलते हैं, इमरान ने बुलाया तो बोले वो हमारा संप्रदाय में नहीं आता, वो अलग पंथ है। मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में आता हूं। मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं और अल्लाह अल्लाह के रसूल पे ईमान लाता हूं। जो भी कुरान और सही हदीस से हट जाता है तो मैं कहता हूं भाई मैं सिर्फ कुरान और सही हदीस, कोई भी शख्स चाहे मुस्लिम हो, कोई भी फिरके का हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर कुरान की आयत पेश करता है मैं उसे कबूल करता हूं, सही हदीस पेश करता हूं कबूल करता हूं। अगर दूसरा कुछ पेश करता है कि इसने कहा उसने कहा तो मैं कहता हूं भाई कुरान और सही हदीस की रोशनी में सही है तो मैं मानता हूं, वरना मैं नहीं मानता हूं। मैं अपने आप को कभी आलिम भी नहीं कहता हूं, मैं स्कॉलर भी नहीं कहता हूं, मैं अपने आप को तालिबे इल्म कहता हूं। लेकिन जो भी कहता हूं कुरान में से हवाला देता हूं, तो दूसरे लोग को जरा हलक से उतरता नहीं, हवाला देता हूं फटाफट। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मदद है। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे पास बहुत इल्म है, बहुत कम इल्म हूं, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे हुनर दिया है मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम दूसरे तक पहुंचाए। तो ये चीज होने ही वाली है। और इसकी मिसाल है कि आज तारीख में सबसे पहले इंसान से लेके आज तक सबसे मशहूर इंसान कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं नहीं कहता हूं, गैर मुसलमान कहते हैं, माइकल आज कहता है, थॉमस कैरर कहते हैं, सबसे ज्यादा किताब अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़े तो मैं क्या हूं? मैं तो कुछ हूं ही नहीं कंपेयर में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मैं क्या हूं? मेरा तो कंपैरिजन भी नहीं है। हमें काम करना चाहिए। कभी कोई अगर इल्तिजा आती है मैं देखता हूं भाई इसके लिए मेरे में कोई हिदायत है ही क्या नहीं? हिदायत है तो मैं बोलता हूं मैं गलत है, मैं बदल जाता हूं, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। हिदायत नहीं है तो छोड़ देता हूं, जवाब भी नहीं देता हूं, बाकी लोग माशाअल्लाह जवाब देते रहते हैं। तो इसीलिए उसी तरीके से मीडिया तो ये मीडिया अगर इस्लाम को बदनाम करना चाहती है, माशाअल्लाह 6 साल पहले माशाअल्लाह एक चैनल वजूद में है, पीस टीवी। और पीस टीवी के जरिए माशाअल्लाह पीस टीवी की देखने वाली तादाद है 10 करोड़ दुनिया भर, सारी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में, हिंदुस्तान में, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। 25% गैर मुसलमान देख रहे हैं। उसके 2.5 साल बाद वजूद में है पीस टीवी उर्दू, और माशाअल्लाह अभी 11 महीने पहले वजूद में है पीस टीवी बंगला। इरादा है, अल्लाह कबूल करे, कि दुनिया के कम से कम 10 अहम मजहबी जबानों में इसको कायम करे, और इसके जरिए माशाअल्लाह सैकड़ों गैर मुस्लिम, हजारों लाखों जब देखते हैं माशाअल्लाह। कभी भी मैं गैर मुस्लिम दुकान में जाऊंगा, अरे डॉक्टर साहब, अरे मुफ्त में ले लो, जाता हूं कम, यहां किधर बाहर जाता हूं, तो माशाअल्लाह ये गैर मुसलमान जब मेरी तकरीर देखते हैं तो कभी भी मेरे दुश्मन नहीं बंद हो सकता है। 1000 में से एक बने, 1000 में से वही लोग जिसकी दुकान बंद हो रही है। तो कुछ गैर मुस्लिम की दुकान बंद होती ना, अरे इतना फायदा हो रहा, अब ये तकरीर करके सही हिंदुज़म लोग जानने लगे तो मैं दुकान बंद हो जाएंगी, सही ईसाई जानने लगे दुकान। मैं खुले तौर पे कहता हूँ भाई आओ स्टेज के ऊपर आओ, हम देखेंगे, हम इस मौजू के ऊपर जिक्र करेंगे, डायलॉग करेंगे। अगर गलत है तो हम गलत मान लें, ओपन क्वेश्चन एंड सेशन। हम प्लांट नहीं करते, हम चिट्ठी में नहीं मानते, खुल्ला पूछो, क्योंकि इस्लाम एक सही मजहब है, दीनुल हक है। तो मैं ये मेरी इल्तिजा आपसे भाई साहब कि मीडिया के जरिए बहकना नहीं चाहिए। मीडिया के जरिए थोड़े लोग होंगे जो मुसलमान जो गलत होंगे, मीडिया से लेके पेश करती है कि अक्सर मुसलमान ऐसे, हमें मीडिया से भड़कना। इसके बावजूद आज सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है, अमेरिका में, यूरोप में, सारी दुनिया में। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही बेहतरीन उस सवालात के जवाब दिए हैं। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, एक क्लिप इन लोगों ने उठाया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है
کہ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो दोस्तों ये ऐसे जो बहुत से फ़िरक़ों में बटे हुए लोग होते हैं जो कि एक इस्लाम से दूर जो लोग होते हैं, तालीमात नहीं जानते हैं, वो लोग जो है वो यही बात कर देते हैं। एक छोटी सी बात उठाकर, एक आलिम की बात, एक अल्लाह ताला का वली जो होता है उसकी छोटी सी एक बात को उठाकर उसका बहुत प्रोपेगेंडा बनाया होता है। जैसे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैं अभी जहाँ पे हूँ यहाँ पे ऐसे बहुत से क्लिप है वो जो बूस्टर हो रहे हैं दिन ब दिन के। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो दोस्तों ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम बल्कि ऐसे नहीं कहा था, बल्कि ऐसे कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अगर आप दोस्तों इस तकरीर को, इस डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बातों को अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हर एक बात जो है वो कहता है कि बहुत से लोग होते हैं कि बहुत बुज़ुर्गों से मांगते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं उनसे मांगते हैं, कोई ऐसे बहुत बड़े फ़कीर होते हैं उनसे मांगते हैं। तो यहाँ तक वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बात कर रहा था कि हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। तो हमें यहाँ तक कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांगना चाहिए। तो वो कितने बड़े शख्सियत है जो कि दुनिया में बहुत बड़ा शख्सियत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के नमूने में बहुत बड़ा शख्सियत है दोस्तों दुनिया में। वो उन लोगों को जो गैर मज़हब के बड़े बड़े राइटर होते हैं उन लोगों ने भी लिखा है, और जितने भी मुसलमान के बड़े राइटर हैं उन लोगों ने भी लिखा है कि आज तक जो कि एक ज़िंदगी का जो खूबसूरत नमूना पेश किया है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर मैं और आप कौन होते हुए जो कि एक आम इंसान से मांगेंगे। तो दोस्तों जैसे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अभी मेरे पीछे एक दूसरा प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि ज़ाकिर ने जो है वो मस्जिद से जूते छोड़े किए। अब दोस्तों ये सोचने की बात है कि एक इतना बड़ा इंसान है जो दिन ब दिन हज़ारों लोगों को मुसलमान करता है, इस्लाम की खातिर इतना जदोजहद कर रहा है दिन ब दिन। फिर टीवी से के ज़रिए और भी ऐसे बहुत से चैनल बहुत ज़ुबानों में हिंदी वर्ल्ड में जो फैले हुए हैं कि ये काम कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास इल्म ना हो, जो लोग कुछ आम काम कर रहे हो जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़ हो, तो वो लोग ये सोचेंगे कि हाँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बिल्कुल चोरी की है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने। वो लोग यही कहेंगे क्योंकि उनके पास उनकी दुकान, जैसे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बात की है कि उनकी दुकान जो है बंद होती है, तो इस वजह से वो मेरे पीछे बातें करते हैं। अगर जो लोग मेरे बयानात सुनते हैं, मेरे तकरीर सुनते हैं, मैं अल्लाह और रसूल की बातें करता हूँ, तो मैं जो है वो कैसे जो है वो लोग इस बातों पे यकीन नहीं करेंगे कि अगर मेरी बयानात गौर से सुनेंगे, अगर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे और अल्लाह ताला उसके रसूल को मानेंगे, तो वो लोग इस बात पे नहीं सोचते। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जैसे कहा कि ऐसे बहुत से प्रोपेगेंडे होते हैं, लेकिन मैं उनको जवाब नहीं देता हूँ। तो इस वजह से दोस्तों ये भी एक हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम का एक तरीका है। अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाए, अगर आपके पीछे कोई बातें भी करे, लेकिन आप लोगों ने सब्र से काम लेना है, बर्दाश्त से काम लेना है, इंशाल्लाह आपको जो जवाब है वो अल्लाह ताला देगा। तो इस तरह जो हमारे सुन्नत का तरीका भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। इनको अपना जो लोग गलत रास्ते पर है उनको अपना जवाब भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने ख़ुद भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती रहनुमा से ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।